فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کیا آپ میری سسٹر بنو گی؟ یہ وہ سوال ہے جو تقریباً ہر لڑکی کے ڈی ایم میں آتے ہیں۔ یہ صرف ایک لبادہ ہوتا ہے عورت کو بیوقوف بنانے کا۔ پہلے سارے شروع میں بہن ہی کہتے ہیں، اس کے بعد پھر چیٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر معاملات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ آئے دن ویڈیوز لیک ہو جاتی ہیں۔ اس وقت کا مسئلہ گناہوں کا نہیں ہے، اس وقت کا اصل مسئلہ ارتداد کا ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو کہاں پڑھوانا ہے اور کہاں نہیں پڑھوانا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے، فتنہ دجال ہے، الومیناٹی کا۔ دجال کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس طرح کے ٹریپ میں نہ آئیں۔ جو لڑکیاں ابھی یہ سوچ رہی ہیں میرے والا الگ ہے تو کسی والا الگ نہیں ہوتا، وہ آپ کی ویڈیوز کو سیف رکھے گا، آپ کی پکچرز کو سیف رکھے گا اور وقت آنے پہ آپ کو بلیک میل کرے گا۔ جو لڑکی برقع پہن کے نکلتی ہے، کیا وہ برقع گھر سے باہر کتنی دور تک رہتا ہے؟ اور اس کے بعد وہ برقع لپٹ کے پرس میں جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اپنے بچوں کو بچا لیں، چاہے وہ زبردستی کرنی پڑے۔ السلام علیکم دوستوں، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیسے باقاعدہ ایک منظم پلان کے تحت بچیوں اور عورتوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے اور انہیں اپنی ہوس کا شکار بنا کر یا تو مار دیا جاتا ہے یا بیچ دیا جاتا ہے یا وہ خودکشی کر لیتی ہیں۔ ہر حال میں بچی اور اس کے گھر والوں کی بربادی طے ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی تفصیل سے جانا کہ کس طرح سے ان وکٹمز کا برین واش کیا جاتا ہے اور کس طرح کئی بڑی تنظیمیں اس کا حصہ ہیں۔ اس کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہم نے اپنے ویڈیوز میں جاننے کی کوشش کی ہیں، جن سے ہم اپنی اور اپنے بچوں کی اس ٹریپ کے جال سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ ویڈیو میں ہم نے اس ٹریپ کے دوسرے پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، جس میں گھر بیٹھا بچہ بھی آسانی سے ملوث ہو جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر آپ حضرات ہمارے ساتھ ابھی نئے جڑے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس سے پہلے کی 3 پارٹس کو آپ ضرور دیکھیں، تبھی اس پارٹ سے آپ بہتر طریقے سے کنیکٹ کر سکیں گے اور اس میں بتائے گئے پریکاشنز پر صحیح سے عمل کر سکیں گے۔ اب تک جو باتیں ہم نے پچھلی ویڈیوز میں جانی، یہ وہ چیزیں تھیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی نظر آتی تھیں اور کسی حد تک ہم ان باتوں سے آگاہ بھی تھے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہاں تک جانا تھا کہ کیسے ایک بچی، چاہے وہ ایک نیک اور دیندار گھرانے سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتی ہو یا جو بذات خود نیک ہو، اسے بھی اس حد تک ٹریپ کر دیا جاتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پر فحاشی اور زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اسی اثنا میں جب ہم اگلے مرحلے کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو بچی اس سٹیج پر پہنچتی ہے کہ جب وہ انٹرنیٹ پر لائیو چیٹ میں بدکاری کرنا شروع کرتی ہے تو اس کے بعد اس 2 طرح سے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ہم ایک ایک کر کے دونوں راستوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب بچی لائیو بدکاری کرنا شروع کرتی ہے تو پھر اس کے گروپ کے ساتھی سب سے پہلے پارٹنرز چینج کرتے ہیں، یعنی کہ اب ہر بار بچی الگ الگ لوگوں کے ساتھ لائیو سیشن کر کے بدکاری کرنا شروع کرتی ہے اور یہ اس چیز کی عادی ہو جاتی ہے۔ اب اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک پارٹنر کے ساتھ بار بار انٹریکٹ ہونے سے وہ بور ہونے لگتی ہے اور اسی وجہ سے اب وہ اپنے گروپ یا چیٹ رومز میں موجود دوسرے ساتھی کے ساتھ یہ فحاشی کرنا شروع کرتی ہے۔ اب اس بچی کو ہر بار ایک نیا پارٹنر درکار ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اس کی اگلی سٹیج پر۔ اس سٹیج میں اب یہ لوگ گروپ چیٹ میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جہاں ایک لڑکی اپنے آپ کو 2 یا 3 یا 4 مردوں کے ساتھ امیجن کرتی ہے اور بدکاری کرتی ہے۔ اس امیجنیشن میں سہارا بنایا جاتا ہے کئی الگ الگ طرح کی فحش ویڈیوز کا، اور اب تو اس میں VR یعنی کہ ورچوئل ریالٹی ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہونے لگا ہے۔ اس ٹیکنالوجی میں ایک چشمے جیسے آلے کو پہن لیا جاتا ہے اور اس میں اس طرح کے ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں کہ پہننے والا انسان کو اس ویڈیو میں اس کی خود کی موجودگی کا احساس کرواتا ہے۔ گروپ میں انٹریکشن کی لت کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے رول پلے کا۔ اس سٹیج پر لڑکی کو یہ امیجنیشن دیے جاتے ہیں جیسے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ہم بستر ہو رہی ہے اور ایسے ہی سلسلہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لڑکی اپنے امیجنیشنز میں اپنے بھائی، والد اور ماں کے ساتھ بھی ہم بستر ہو کر بدکاری کرتی ہے۔ اسی سلسلے میں اگلا سٹیج ہے اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ بدکاری کا۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسے بچی کو پہلے رول پلے میں مبتلا کیا گیا تھا، ایسے ہی اب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے مذہبی ڈریس یعنی کہ برقعے اور حجاب میں بدکاری کرے۔ یہ سلسلہ اتنا گہرا ہے کہ عام آدمی اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا کہ انسان اور خاص طور سے بچوں کی ذہنیت اور حیا کو کس حد تک تار تار کیا جا رہا ہے۔ یہاں میں بہت شارٹ میں صرف ان پوائنٹس کو ڈسکس کر رہا ہوں جن کا تعلق آگے آنے والی کچھ چیزوں سے ہے، جس سے کہ ہمیں یہ سارا ماجرا سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ برقعے اور حجاب میں بدکاری کے بعد اب نمبر ہے نماز کی حالت میں بدکاری کرنے کا۔ اس بات
बारे में इससे ज्यादा डिटेल्स इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करने से मैं कासिर हूँ। इससे अगले मरहले में इन बच्चों को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं जिसमें और ज्यादा फहाश हरकतें शामिल हैं, और साथ ही इन टास्क में से कुछ ऐसी टास्क भी होती हैं जिनमें इन्हें अपनी बहनों, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इस ग्रुप में ज्वाइन कराना होता है। तो हमने ये देखा कि कैसे इस बच्ची को इस हद दर्जे की फहाशी में धकेला गया। हमने ये भी देखा कि इस पूरे सिलसिले में किसी भी मर्द के साथ कोई इंटरेक्शन हुए बिना ये बच्ची न सिर्फ फहाशी में मुब्तला हो गई, बल्कि अब इसके अंदर वो हार्मोनल चेंजेस भी होना शुरू हो जाते हैं कि जो आम तौर पर शादी या इंटरकोर्स के बाद होते हैं। ये भी याद रखें कि इन मराहिल से गुजरने के बाद ये बच्ची अब अपनी अज़दिवाजी जिंदगी में अपने हस्बैंड से कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इसकी मैरिड लाइफ भी बर्बाद हो जाती है। अब हम वापस पीछे चलते हैं जहाँ से हमने आज का सिलसिला शुरू किया था, यानी कि अभी बच्ची उस स्टेज पर है कि उसने इंटरनेट पर अपने किसी दोस्त के साथ बदकारी करना शुरू ही किया है। इसके बाद एक रास्ता तो ये है जो अभी मैंने आप हजरात के सामने रखा, जिसका शिकार आमतौर पर कम उम्र वाली लड़कियां होती हैं। इसका जो दूसरा रास्ता है अब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस ट्रैप में ज्यादातर 20 साल या उससे ऊपर की लड़कियां और औरतें फंसती हैं। अब जब ये लड़की कुछ वक्त तक बदकारियों में मुलविस होती है तो जाहिर है कि उसके फिजिकल नीड्स भी ट्रिगर होते हैं, और इसी वक्त का इंतजार कर रहे उसके चैट ग्रुप्स के साथी उसे आसानी से अपने साथ हमबिस्तर होने के लिए मना लेते हैं। इस ट्रैप की लड़कियां चूंकि उम्र में बड़ी होती हैं या प्रोफेशनल होती हैं, तो यह आसानी से बाहर जाकर इस काम में मुलविस हो जाती हैं। इस कैटेगरी में 18 साल की लड़की से लेकर जवान बच्चों की माँ तक शामिल है। जाहिर है कि ये लेडीज ज्यादा वक्त तो बाहर नहीं दे सकती और इन्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र भी साथ लगी रहती है, जिसकी वजह से अब ये थोड़ा दूर होने की कोशिश करती हैं। और यहाँ से शुरू होता है इस ट्रैप का काला खेल। जैसे ही कोई लड़की यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, वैसे ही उसके सामने वो सारा वीडियोस रख दिए जाते हैं जिसमें उसने शुरुआत से लेकर अब तक फहाशी की थी, और अब उसे ब्लैकमेल किया जाता है कि वो उन लोगों के कहने के हिसाब से दूसरे लोगों के साथ बदकारी करे, यानी कि उसे एक तरह से फहाश औरत बना दिया जाता है। कई लड़कियां इसी ट्रैप की वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी शिकार होती हैं, कई इसी गलाजत में जीना सीख लेती हैं और कई खुदकुशी कर लेती हैं। ये दोनों ट्रैप्स जिनका अभी मैंने जिक्र किया, इनमें इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि जब तक ये लड़कियां या बच्चियां इस तरह की ऑनलाइन फहाशी और आप बदकारी में एडिक्टेड ना हो जाएं, तब तक उन्हें भनक भी नहीं होती कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। और एक बार जब वो इससे एडिक्ट हो जाती हैं तो वो ना चाहते हुए भी वो सब करती हैं जो उनसे करवाया जाता है, और शुरुआत में उन्हें उसी में सुकून भी हासिल होता है। हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जिसमें लड़कियां नमाजी और परहेजगार भी हैं, लेकिन एडिक्शन की वजह से वो फिर उसी रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो जाती हैं। ब्लैकमेलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अननेचुरल इंटरकोर्स या सेक्स स्लेवरी, यही इन ट्रैप्स का एंड रिजल्ट होता है। अब हम इस पूरे सिनेरियो को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले वीडियोस में आपको इल्यूमिनाटी के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था और आपसे वादा किया था कि इसके ट्रैप से कनेक्शन के बारे में आगे तफसील से बात करेंगे। शैतान अपने पैरोकारों से हर वो काम करवाता है जो कि अननेचुरल है और जिसमें अल्लाह की बेहुरमती शामिल हो। ऐसे ढेरों सबूत हैं जो इस बात को साबित करते हैं। फिलहाल हम इस टॉपिक के मद्देनजर रखते हुए इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब इस पूरे सिलसिले को इस एंगल से देखने की कोशिश करें कि इन ट्रैप करने वालों ने इन लड़कियों से हर वो काम करवाया है जो अल्लाह को नापसंद और शैतान को पसंद है। यहाँ तक कि माँ, बाप, भाई, बेटा और नमाज की हालत तक में जिना करवाया गया। कोई मजहब की नफरत में तो कोई आजादी के नाम पर, कहीं लिबरलाइजेशन के नाम पर तो कहीं साइंस के नाम पर, हर जगह अलग अलग चश्मे पहनाकर शैतान इनसे ये काम करवा रहा है। और इस सब से ऊपर शैतान के पैरोकार इल्यूमिनाटी या सीक्रेट सोसाइटीज जो आज इस पूरी दुनिया को चलाने में बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, वो इन चीजों को फरोग देने के लिए पूरी दुनिया की सरकारों से ऐसे कामों के लिए राहें हमवार कराने में लगी हुई हैं। और यही काम सोशल मीडिया के सहारे भी किया जा रहा है। इनका सिर्फ एक ही मोटो है, अवाम को अल्लाह के बनाए बॉर्डर से क्रॉस करवाना और अल्लाह की बेहुरमती करवाना। इन दोनों चीजों से इंसान दाराए ईमान से खारिज हो जाता है और अपने
आप शैतान की टीम में शामिल हो जाता है। अब जरा ये सोचें कि हमारी बेटी के पीछे ये पूरी शैतानी दुनिया गिद्ध की तरह नजर जमाए बैठी है। अगर हमने पलकें भी झपकाई तो इतनी देर में ये हमारी बच्ची को हमसे हमेशा के लिए पराया कर देंगे। खुदारा इन बातों को याद रखें और अब भी वक्त है समझ जाएं, वरना हमने ऐसा भी देखा है जहां बाप और जवान बेटा मजबूर है अपनी माँ को खुद इजाजत देने के लिए कि वो किसी के साथ जाकर ऑनलाइन बदकारी कर ले, वैसे ही जैसे कोई नशाखोर तड़प कर आपसे नशा मांगता है। खुदारा इसे एक बार इमेजिन करके देखें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपनी बच्चियों को इन ट्रैप से बचाने के लिए कुछ इकदाम किए जा सकते हैं। अपने घर पर सिंपल फोन रखें, स्मार्ट नहीं। अपने बच्चों को कम से कम 20 साल की उम्र के पहले स्मार्टफोन ना दिलवाएं। घर में अगर आपको स्मार्टफोन रखना जरूरी है तो उस पर कंट्रोल्ड एप्स डालकर रखें। ऐसी कई एप्स हैं जिनसे फोन के यूजेज को ब्लॉक किया जा सकता है या उन पर नजर रखी जा सकती है। अपनी बच्ची को घर में भी बिल्कुल अकेला ना छोड़ें। बच्ची को किसी न किसी काम में एंगेज जरूर रखें, यानी पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल रखें। सोशल मीडिया की कोई भी ऐप अपने फोन में ना रखें। बच्ची के साथ बातचीत को सिंपल रखें और उससे आपसे खुलकर बात करने की स्पेस प्रोवाइड करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और बच्चों के खातिर उनके साथ वक्त गुजारें। अपनी बच्चियों को खास तौर से अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पाबंदी के साथ सुनाएं और समझाएं। अल्लाह की गफ्फारी के साथ अल्लाह की क़हारी सिफत का भी वक्त वक्त पर बच्चों की याद दहानी करवाते रहें। होम स्टडीज को प्रायोरिटी दें और इन स्टडीज के लिए बच्चों को फोन नहीं बल्कि कंप्यूटर प्रोवाइड करें ताकि उन पर वॉच रखी जा सके। हमेशा ध्यान रहे कि बच्चों का स्टडी रूम उनके बेडरूम में ना हो बल्कि ऐसी जगह हो जहां बच्चे पे हर वक्त नजर रखी जा सके। बच्चों के सोने से पहले कभी ना सोएं, हमेशा बच्चों को सुलाकर ही खुद सोएं और बच्चों के उठने से पहले उठ जाएं। अपनी बच्ची की सहेलियों को भी अच्छी तरह से जांच लें और फोन पर बिना काम के सहेलियों से भी बात न करने दें। बच्ची को कभी कहीं भी अकेला ना भेजें। मखलूत तालीमी इदारों से अपने बच्चों को फौरन बाहर करें। बच्ची की दीनी तालीम पर खास तवज्जो दें। इन तदाबीर को इख्तियार करने पर इंशाअल्लाह हमारी बच्ची सेफ रहेगी। साथ ही ये भी याद रखें कि इन इकदामात को इस तरह से नाफिज न किया जाए जिससे कि ये बच्चे अपने आप को मुजरिम समझने लगे या कैद में समझें। हमेशा बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेकर ये काम किए जाएं। अब आते हैं उस तरफ जहां वो बच्चियां हैं जो इस ट्रैप में ऑलरेडी शिकार हो चुकी हैं। इस ट्रैप में और इन चीजों से एक बार एडिक्शन हो जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जो आपको इस दलदल से निकाल सकता है, और वो है जिक्रुल्लाह। हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मुब्तिला रहें और जब आपको ऐसे ख्यालात आए तो अल्लाह की तरफ रुजू करें और अपनी कब्र और आखिरत का तस्वुर करें और अल्लाह से दुआ करें। बेशक अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है और वही आपको इस दलदल से निकालने की हिम्मत भी देगा और ताकत भी। जितना हो सके अकेला रहने से परहेज करें। अपने पेरेंट्स से अपने परेशानियों को जरूर शेयर करें। उनको यकीन दिलाएं कि अब आप इससे बाहर निकलना चाहती हैं और उनसे मदद मांगे। फर्ज नमाजों के साथ नवाफिल को इंक्रीज करें। अल्लाह दिलों के हाल को जानने वाला है, उससे हर वक्त दुआ करते रहें। मैं एनजीओज और सोशल वर्कर से गुजारिश करूंगा कि अपने शहर को कुछ एरियाज में डिवाइड करके एक दीनदार और प्रोफेशनल लेडीज का ग्रुप बनाएं और उनके जरिए हर एरिया में लेडीज की लोकल टीम्स बनाकर हर बच्ची तक रसाई को मुमकिन बनाकर इस ट्रैप से आगाह करें और जो बच्चियां इस ट्रैप में फंस चुकी हैं उनसे राब्ता करके उन्हें इससे निकालने में उनकी मदद करें। ऐसे ग्रुप्स को हमने आयशा ग्रुप का नाम दिया है। अगले पार्ट में इंशाअल्लाह इस ट्रैप से बचने की तदाबीर पर अलग से रोशनी डालने की कोशिश रहेगी कि कैसे अपने घर में इससे बचा जा सकता है और कैसे शहरी सतह पर इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। इन वीडियोस की सीरीज को हर घर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस पूरी सीरीज के वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में सिलसिलेवार तरीके से मिल जाएंगी। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।